Hi, Gajendra. Hi, sir. Yeah, so tell me, is I'm audible? Yeah, Okay, great. Yes, Gajendra, tell me what you're looking for. sir. Actually, I'm electrical engineer, and I, I'm electrical engineer, and I have 15 years of experience in industries. But I don't know particular SAP activities. So, in the routine activities, SAP is very important. Like we have to release work order, and then we have to make PR also, and then we have to maintain many formalities. Okay, so I want to do SAP PM particular. That's it. Okay, so why specifically the PM only? Why you're looking for Because just PM? We because do have I'm many the modules. yeah, sir. Because I'm a maintenance guy, so this is PM is very good for me. Okay, so you mean to say Because that in a in a you maintenance, as you're working into not the sorry. I mean, you are saying that as you are working into the plant maintenance, means Yes, into the maintenance department, so that's why you just wanted to opt for a course of plant maintenance in SAP, right? yes, right. Okay. Apart from it, can you just make me go through your candidature? Means in how many industries you have worked upon and means the exposure, kind of the exposure. Okay, sir, are you comfortable with Hindi also, na? Because I No, am no normally problem. Tell me. prefer because I am normally prefer Hindi. Hindi is our कोई बात national नहीं, language and बताइए। better interaction, है ना? Okay. या So या टेल मी। मैं हाँ मैं 15 ईयर से करीब नॉर्मल केमिकल इंडस्ट्रीज और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में हूँ। ठीक है, बट मैं बेसिकली डिप्लोमा हूँ, इस वजह से मुझे ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाया अभी तक। नॉर्मली कभी एक आध कंपनी में मुझे परमानेंट जॉब मिला, उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट में ही जॉब कर रहा हूँ। और रिसेंटली मेरी जॉब भी चली गई कोविड की वजह से, मई महीने में। मई से मैं घर पर ही बैठा हूँ, और इस 15 साल में मुझे काफ़ी दिक्कत आई। जहाँ पे इंटरव्यूज दिए वहाँ पे मैक्सिमम सेप मांगते हैं। अब सेप मुझे जो है वो आता नहीं है पर्टिकुलर, तो इस वजह से अभी सेप करना है ताकि मैं इसमें थोड़ा एक्सपर्ट हो जाऊं, तो मैं कोई एक अच्छी परमानेंट जॉब जो है वो मुझे मिल जाए बस। ओके। अच्छा, तो गजेंद्र आपने 15 साल यू आर सेइंग कि कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है। यू मीन टू से मेजरली हाँ, आपका जो चंक रहा वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहा और हाँ, परमानेंट रोल किसी कुछ कंपनीज में रहे, राइट? हाँ, एक आध कंपनी में मेरा रोल रहा है, इससे ज्यादा नहीं रहा कंपनीज में बस। किस किस कंपनी में काम किया है आपने? मैंने काम किया है केन ऑयल एंड गैस में, बाड़मेर में। ठीक है, फिर बाद में के एस ऑयल्स में, जहाँ पे मैं परमानेंट था थोड़े टाइम के लिए। फिर बाद में वापस ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर रिफाइनरी में, वहाँ पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट था मेरा 2-3 इयर्स के लिए। बस उसके बाद में फिर ये केन में वापस आया मैं, वहाँ से जॉब चली गई दो, और अभी मई में जॉब खत्म हो गई। ओके, so right now you are waiting for some good opportunity and based in कहाँ पे हो अभी आप? जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान। हम्म, ओके, ओके। सो अभी आपको पीएम यू हैव मेड योर माइंड कि आपको पीएम ही करना है, प्लांट मेंटेनेंस ही हम्म, करना है एंड यू जस्ट वांटेड टू ऑप्ट द कोर्स ऑफ एसएपी, राइट? यस, यस। ओके, ठीक है, नो वरीज। गजेंद्र, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम उदित and I do have an experience of near about 10 plus years. I am into the implementations and into SAP, core SAP.
I have worked upon PM, PP, MM. So these are some of the modules in which I have worked upon so far. Right now, I am holding a position of solutioning consultant in Prospector Solutions Limited, and I do have switched, to couple of industries. Like I have worked into the Bhushan Steel, I have worked into the Alps Industries Limited, I have worked into Accenture, I have worked in Exalta Coating Systems, I have worked into Total IT Global, and right now I'm in Prospecta, and I'm a solutioning consultant. I can say the whole, the business models I used to provide the solution from the SAP end. So this is about my profile. I'm just trying to give you a glimpse of my candidature. Apart from it, yes, of course, I can say academics में आपने डिप्लोमा ही किया है, right, गजेंद्र? Diploma in mechanical, हाँ? Diploma in electrical. Electrical, okay. Electrical किया है, and then 15 साल से मेंटेनेंस में काम कर रहे हो. Okay, cool. So is okay, Gajendra. Means, what I just wanted to suggest to you is, if you have worked into the maintenance itself, तो आपको नॉलेज है एक मैं कहूँगा एक इंडस्ट्री की, दैट इज प्रोसेस इंडस्ट्री. इस गैस एंड ऑयल एंड ऑल, ये सब प्रोसेस इंडस्ट्री में आती हैं. जब आप SAP का कोर्स करोगे तो आपको बहुत चीजें पता लगेंगी. इफ आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस, देन ऑफ कोर्स आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज प्रोसेस इंडस्ट्रीज, व्हाट इज रिपीटेटिव इंडस्ट्री, व्हाट इज डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग. उसके बेस पे ही कैटेगराइजेशन रहता है इंडस्ट्रीज का. तो आपकी जैसे गैस एंड ऑयल है, तो वो आपकी एक प्रोसेस इंडस्ट्री आ जाती है. तो उसमें प्रोसेस इंडस्ट्री का आपको एक्सपोजर है. तो आप मेंटेनेंस में काम किया है आपने. सिंस 15 years यू आर वर्किंग इनटू द मेंटेनेंस इटसेल्फ. तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मेंटेनेंस ऑर्डर्स कैसे बनते हैं, आपका मेंटेनेंस की पूरी साइकिल तो नहीं पता होगी, बट यस आई कैन से मेंटेनेंस में क्या क्या स्कोप में है. अच्छा, क्या करते थे, आपका एक्सपोजर SAP में कितना है, क्या क्या किया है आपने SAP में? SAP में मैं सिर्फ अभी यहाँ कैन में था, तभी एक गेट पास बनाना मुझे जो एक कैन एम्प्लॉइज ने बताया था, क्योंकि वो काफी कामकाज में बिजी रहते थे. सिर्फ वहाँ पे कैन आपका कौन सा वाला कैन ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड वाला कैन की बात? नहीं, बाड़मेर. वेलपेट्स, बाड़मेर राजस्थान. अच्छा. तो गेट पास ही आता है मुझे, इसके अलावा और ज्यादा नहीं आता. बट मुझे ERP का एक्सपीरियंस है. पहले मैंने थोड़ा ERP किया हुआ था, तो उसमें मैं ये वर्क ऑर्डर्स वगैरह रिलीज करता था, PR भी बनाता था. तो इसका एक्सपीरियंस है. बाकी और दूसरा SAP में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है. बट मैं ये जानता हूँ कि भाई मेंटेनेंस के लिए मतलब नोटिफिकेशंस आते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो है काम करना पड़ता है मेंटेनेंस में. फिर जो भी एक्टिविटीज रहती है, कहाँ से स्टार्ट किया और कितने स्पेयर पार्ट्स यूज हुए, क्या क्या एक्टिविटीज थी, वो पूरा एकदम मतलब पूरी चीज होनी चाहिए. होने के बाद में फिर मेंटेनेंस वर्क ऑर्डर को रिलीज करते हैं. उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का वर्क ऑर्डर्स भी होता है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है, कंडीशन मॉनिटरिंग होती है. ये सब चीजें मुझे मालूम है ऊपर से थोड़ा. ओके. और PR भी है कि जैसे स्टोर में मुझे कोई एक आइटम चाहिए, तो अभी मैं स्टोर में कैसे इंक्वायरी करूं, अब वो मुझे पता नहीं है. बट मुझे ये मालूम है कि उसमें भी वो कामकाज करते हैं. स्टोर में भी देखते हैं कि भाई ये मटेरियल है नहीं है, कोड के हिसाब से. अब वो कोड कौन से होते हैं, क्या होता है, वो पता नहीं है. ओके, ठीक है. मतलब आप इन्वेंटरी चेक करना आपको लगता है कि पता है कि इन्वेंटरी कैसे चेक करते हैं, या फिर आपको कोई मटेरियल चाहिए तो उसके लिए कैसे रिक्वेस्ट डालेंगे, स्टोर पे जाए या फिर स्टोर, मतलब आपको ये साइकिल पता है कि जो स्टोर पे जाएगी, स्टोर के पास होगी तो वो हैंड ओवर करेंगे, नहीं होगी तो दे विल रेज अ रिक्वेस्ट, सोर्स इट फ्रॉम द मार्केट. तो वो सोर्स
सोर्सिंग टीम के पास जाएगा, सोर्सिंग टीम फिर सोर्सेज देखेगी, वेंडर्स ढूंढेगी, वो फिर प्रोक्योरमेंट का साइकिल स्टार्ट हो जाता है कि पीआर जनरेट होती है, परचेज होता है, परचेज ऑर्डर फिर हम वेंडर को देते हैं, वापस लाके माल देता है, जब माल वापस लाके देता है तो स्टोर में जाता है, स्टोर में जाता है, उसकी एंट्री होती है, जीआर होता है, जीआरएन बनता है, जीआरएन बनने के बाद में फिर जिसने मंगाया है शायद वहां पे नोटिफिकेशन भी आता है कि भाई आपका मटेरियल आ गया है ना, तो अल्टीमेट कंजप्शन में चली जाती हैं चीजें, वो इन्वेंटरी मैनेजमेंट जाती है। So okay, you have the idea, I can say you have the idea of business कि how it runs, मतलब कोई भी कैसे करती है आपको ये पता है, और of course अगर आप 15 साल से काम कर रहे हो you know it of course। मुझे अभी तक किसी ने बताया नहीं कि भाई चलो तुमको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे होता है, ये करना। गेट पास बनाना बताया एक बार मुझे, सिर्फ मैंने मेरी डायरी में लिख लिया ये स्टेप्स होते हैं, उसके बाद में फिर मैं गेट पास बनाने लगा था, बट अभी तक किसी ने मुझे बताया नहीं कंप्यूटर पर बैठा के भाई ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे करना है। बस वहीं पे दिक्कत आ रही है खास, वर्क ऑर्डर्स में और ये जो स्टोर की थोड़ी फॉर्मेलिटीज, मटेरियल इन्वेंटरी, उसमें। Okay, no problem, Gajendra. So what I feel is, if you wanted to do a course of PM, then of course that is something good for you, because आपने 15 साल से मेंटेनेंस में काम किया है। अगर मेंटेनेंस में किया है तो प्लांट मेंटेनेंस तो आप कर सकते हो कोर्स and go for it, and then I can say search the relevant jobs जो प्लांट मेंटेनेंस में है, जो भी jobs plant maintenance के अंदर है, so go for it, I would say the same thing। Best anything you wanted to ask from me, let me know, else I can say हमारे टीम से कोई ना कोई आपको कोऑर्डिनेट करेगा। anything you wanted to ask from me? तो सर अभी मैं ये जान सकता हूँ कि लेटेस्ट वर्जन जो SAP का SAP, दिन में बात हुई थी मैडम से तो बताया था जर्मन सॉफ्टवेयर है SAP, उसमें SAP जो है SAP। तो क्या कि SAP नहीं बोलना चाहिए, SAP बोलना चाहिए क्योंकि अब्यूज है जर्मन में, इसीलिए चलिए SAP। तो SAP लेटेस्ट वर्जन का मतलब जो आप सिखाएंगे वही है ना, मुझे सिखाएंगे वही लेटेस्ट वर्जन है? लेटेस्ट वर्जन से आप क्या समझते हैं? लेटेस्ट वर्जन मींस मैं ये समझता हूँ कि शायद, मुझे पता नहीं इसीलिए, विंडो 2003 था, मतलब 1997 था, 2003 हुआ, 2007 भी आ गया, 10 भी आ गया, ऐसा कुछ है। तो उसके हिसाब से लेटेस्ट वर्जन, 10 आया, विंडो 10 आया तो वो विंडो 3 वाला काम बंद तो नहीं हुआ होगा शायद? नहीं हुआ ना। So don't worry, do not worry। आप बस इंडस्ट्री में ये अभी जो आप इस सेशन में जो आप गेज करो ना, वो ये करो कि जो बंदा सामने वाला है, if he is experienced or not, if he is having exposure into SAP or not, ये गेज करो। बाकी का लेटेस्ट वर्जन तो फिर अभी S4 HANA पे भी चले गए हैं, you know about S4 HANA। S4 HANA की भी वर्जनिंग है, 1500, 1800, 1909 ये चलती है, मतलब उसमें भी वर्जनिंग है। सेम विद SAP 6 था, 7.6 760 पे भी काम कर रहे हैं, मतलब वो एक वर्जनिंग है। मतलब अगर कुछ हल्का सा चेंज होता है, अमेंडमेंट होता है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट होता है, जो भी प्रोडक्ट, SAP इज अ प्रोडक्ट, तो SAP में कुछ एनहेंसमेंट हुआ, SAP में कुछ चेंजेस हुए, टी कोड लेवल्स पे चेंजेस हुए, तो वो एक वर्जन नया बना देते हैं। कुछ सर्वर डेटा टेबल्स में कुछ आई कैन से चेंजेस हुए, कुछ टेबल्स मर्ज हो गई, कुछ टेबल्स को अलग कर दिया, तो वो सब चीजें जो होती है ना, वो लिटिल बिट चेंजेस होते हैं, वो पता भी नहीं लगता कि क्या चेंज हुआ, और नया वर्जन बन जाता है। ठीक है, तो do not worry, we will be giving you a hands on the latest version itself। और थोड़े बहुत little bit changes होते हैं, जैसे आप विंडोज में काम करते थे तो आप
वो थोड़ी सी स्क्रीन जो होती थी वो ऐसी दिखती थी जैसे बिल्कुल सिंपल है। अब विंडोज 10 में काम करोगे तो वो थोड़ी सी ऐसा से रोबोट चल रहा है, तो काइंड ऑफ इट। तो वो चेंजेस हैं। अदरवाइज एसएपी इज एसएपी, मतलब दैट इज सॉल्विंग अ पर्पस ऑफ एनी ऑफ। एग्री। तो अभी ये जो ट्रेनिंग होती है, मतलब जैसे आप सिखाएंगे सपोज, ठीक है, मैं स्काई इन्फोटेक के साथ जाता हूँ, तो इसमें रियल टाइम ट्रेनिंग होगी। आपको कंपनी का मतलब जो है टाइमिंग 2-3 महीने के लिए लाइसेंस वगैरह जो होता है देखे, फिर वो कामकाज होता है, ऐसा कुछ होगा उसमें? देखिए लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी हम काम करा लेते हैं। एंड even if I talk about myself, I used to engage or I can say मैं खुद अपनी कंपनी में भी कई लोगों को हायर कर लेता हूँ। बट इट इज ओके, मतलब आई एम नॉट गिविंग अ कमिटमेंट और आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग टू यू। आपको मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट्स की बात करो तो हम लोग कई बारी जो ट्यूटर्स होते हैं या फैकल्टी जो भी एंगेज रहती है इंस्टीट्यूट से, तो टू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज की किस की कंपनी में कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं या ओपनिंग्स हैं, और फिर जो इंटरनल हमारे कैंडिडेट को ही रेफर करते हैं एक दूसरे कंपनियों में। सो दिस इज काइंड ऑफ अप्रोच। अपार्ट फ्रॉम इट, जो प्रोजेक्ट पे काम करोगे, देखो उसके डेमो सर्वर मिलेगा ही मिलेगा जिसपे आप अपना प्रैक्टिस करते हो प्रॉपर, कि पूरा कंपनी बनाना एंड देन मेंटेनेंस में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं वो सब खुद कर सकते हो आप काम। तो ऑलरेडी आपके पास लाइव प्रोडक्ट ही है जिसपे आपको हैंड्स ऑन करने हैं। जैसे आपकी कंपनी में एसएपी है तो लिमिटेड फंक्शनैलिटी होगी कि आप यही परचेज ऑर्डर पे ही क्लिक करेंगे, इसी पे बटन पे क्लिक करेंगे, बस नहीं कर सकते हो, उसके अलावा नहीं करोगे, राइट? बट ये आपको एक फ्री सर्वर दे देंगे, आप उसमें अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करो और उसको जितना आपको यूज करना है आप उसको यूज करो, काइंड ऑफ। ठीक है। कुछ चीज थी लिखी हुई है मैंने, ये हो गया रियल टाइमिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो गया, स्टडिंग मटेरियल जैसे पीडीएफ, ई बुक्स वगैरह सब तो मतलब ये एजेंसी प्रोवाइड करेगी, है ना? Of course you will study material। और मैं अगर अपना the style of cascading the information बोलूं तो मैं तो सेशंस में ही इतना कराता हूँ, शायद स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ती नहीं है बच्चे को। बट एनीवेज वी डू हैव नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, जैसे आपका SPN का आपका वो है वेबसाइट है, वहां से आपको बहुत मटेरियल मिल जाता है। इंटरनेट पे इतना मटेरियल मिल जाता है कि यू विल नॉट बी एबल टू आई कैन से पढ़ नहीं पाओगे इतना। हाँ सही है, इंटरनेट पे इतना मिलता है। तो आप बेसिक चाहिए ना, वो ये चाहिए कि आप ने सीखा क्या, आपको पूरा प्रॉपर ERP जो SAP है उसमें अपने प्लांट मेंटेनेंस के पर्सपेक्टिव से ये समझ आए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एंड देन फिर जब आप सर्च करोगे और स्टडी करोगे इंटरनेट से भी, तब भी आप रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे चीजों। एग्री कि ये चीज अच्छा है, यहाँ पे ये है, ओके, यहाँ से ये है, ओके। और बिफोर माय क्लासेस आई यूज्ड टू से, मेरे से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं candidates, तो I used to say I never give them the answer. Actually I don't answer, because I used to say आप एक बार सर्च करना इस क्वेश्चन को and we will discuss it tomorrow. You know the reason why? अच्छा, tell me, A for Apple. That's really good. अच्छा, आपने अफ्रीका क्यों नहीं कहा, अमेरिका क्यों नहीं कहा? शुरुआत से यही सिखाया हुआ है। गुड कूल। तो गजेंद्र यही मेरे अप्रोच रहती है। मैं रियलिस्टिक बंदा हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हूँ, प्रैक्टिकली पढ़ाता हूँ मैं ना। तो I don't used to give the answers. मैं पहले बोलता हूँ कि के लाना। शायद A for आपको उस टीचर ने जिसने एप्पल बताया था ना,
वो बोलता है ना कि आप करके लाना A4 क्या होता है। तो अगर 50 बच्चे बैठे थे ना क्लास में, तो 50 में से शायद मैं कहूंगा आपके 150-200 आंसर होते कि A4 अफ्रीका भी होता है, A4 अटलांटिका भी होता है, A4 अमेरिका भी होता है, A4 सही है। ऑफ कोर्स एप्पल भी होता है, और ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमारे पास बहुत आंसर होते हैं, बट वी नॉट इवन यू मींस आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ एज वेल। तो अगर कोई पूछेगा तो मैं भी यही बोलूंगा, एप्पल, राइट, बट इट्स नॉट दी थिंग। आप पहले सर्च करो, खुद पढ़ो। जिस टाइम पे मैं बताऊंगा तो आप 10 में और पता होंगी आपको। एग्री। तो वो थोड़ी सी अप्रोच। सो यस गजेंद्र, आई थिंक आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मेरे भी क्लाइंट का अभी दोबारा मेरी कॉल है, सो टेल मी कोई नहीं सर, आई कैन हेल्प यू विद। लास्ट एक क्वेश्चन था कि इसके बाद में सर्टिफिकेशन भी रहेगा ना, सर्टिफिकेट? हमारे प्रोवाइड करती है आपको, बट वी वांटेड टू गेट अ रियल सर्टिफिकेशन जो करते हैं, यू नो, जो SAP सर्टिफाइड बोर्ड पे जाते हैं कंसल्टेंट्स। तो हमारा SAP जर्मनी से ही होता है, उसका टेस्ट होता है, वो करना पड़ता है। I'll be taking you through those things। और ये तो आप एक बार इंस्टीट्यूट में भी बात कर लेंगे, तो they will guide you about certification and all। Okay sir, okay। Anything else, Gajendra, I can help you with? No sir, thank you very much for your time। No, it's all fine, Gajendra। I used to, or I can say I love to guide candidates like you, so do not worry, it's all good। Means nice time with you as well। Okay sir। Chalo Gajendra, see ya, thanks। Okay sir, thank you, bye bye। Thank you, bye bye।